Hi PU. Hi Arohi. Hi Makeover. Places. Hi Sonali. Hi Sushma. Hi guys. Hi guys. So guys, are you ready for the most knowledgeable class today? आज हम बहुत सारा नॉलेज सीखने वाले हैं. मेरे सिग्नेचर लुक्स टेक्निक्स सीखने वाले हैं. अगर आप लोग को नहीं पता है मैं कौन हूँ, सो आई एम निकिता अरोरा, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट एक्सपर्ट फ्रॉम बॉम्बे. Hello. So we will wait 2 more minutes for more people to join. Yes, I am trying to take the class in English. Hi, Janvi. So this is going to be a super informative class. Hello guys. Hi Aparna, hi Ishika. So I think we should get started with our class. Hello. So guys, आप लोग सब कहाँ से हो? कम प्रियांशु. हाँ इंस्टा पे. अपने इंस्टा पे नहीं, ऑलरेडी .in. So guys, आप लोग कहाँ से हो? Like I want to know that from what cities people are watching this live. So सब लोग फटाफट अपना सिटी कमेंट करो. Ahmednagar, that's very nice. Chennai, Jammu, Chennai, Mumbai, Satara, very nice. Yeah, so we have people from all over India. Chalisgaon, Vriddhachalam. Great. So guys, as I see there are a lot of makeup artists who have joined our course. So this not course, masterclass. So this class is going to be for everyone who's already a professional and who is looking to turn into a professional or who wants to start a career in makeup artistry. तो ये क्लास सबके लिए है. मथुरा, हैदराबाद, that's very nice. Rajasthan. Chalo, great. So I will start the class now, and I have one request and few rules of this class. So whenever we start the class like this on Insta, we request everyone who's attending the class to ask questions only related to the steps or the part of the face that we are doing. Agar suppose eyebrows ho raha hai ya we are doing eyebrows, do not ask question for lips, okay? लिप्स दोनों मेरी जो मैंने लगाई. So if we are doing base, do not ask question for eyes. If you are doing eyes, do not ask question for base, okay? It will confuse everybody and it's going to be difficult. Okay guys, so I think we'll get started with the class. So here is our today's model, Priyanshi. And we are going to take the class on her. We just set up. Okay. I think this is not the right setting. Thank you, Koyal. Thank you so much. Guys, just give me a second to set the phone.
टाइट करो. टाइट है. I think this is better. Yeah, this is clear, guys, right? Okay, guys, so this is our model Priyanshi, and we are going to do today a wedding guest makeup look on her. Okay, और साथ ही साथ हम आपके questions भी आंसर करते जाएंगे. तो पहले गाइज हम स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे. कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप स्किन प्रेप नहीं करोगे, प्लीज मोर जूम. अगर आप स्किन प्रेप नहीं करोगे तो फिर आपका बेस अच्छा नहीं होगा. जिनको भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा बेस केकी हो रहा है और ग्रे हो रहा है और चिप हो रहा है, फट रहा है, क्रैक हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी स्किन प्रेप के ऊपर डिपेंड करती है. तो आज की स्किन प्रेप आप बहुत ध्यान से देखें. तो बेसिक क्लेंजिंग टोनिंग यानी CTM, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हम करेंगे क्लेंजिंग के लिए पहले हम यूज़ कर रहे हैं गार्नियर का माइसेलर वाटर. ओके, और उसके बाद हम इसे कॉटन में लेके फेस को क्लीन कर लेंगे. आप पहले फेस वॉश करके बिठा दीजिए अपनी ब्राइड को या मॉडल को, और उसके बाद एक राउंड माइसेलर वाटर से भी क्लीन कर दीजिए. क्या बाल उठ रहे हैं. So this is what we are doing. This is cleansing. So guys, ये क्लास लगभग हमारी 1 घंटा चलने वाली है. तो अपने बुक पेन ले लीजिए और सारे स्टेप्स बराबर से नोट डाउन कर लीजिए. स्क्रब नहीं करती हूँ फेस. क्लेंजिंग हो गई. अभी हम टोनर लगाएंगे. टोनर के लिए आपको 100 टोनर रखने की ज़रूरत नहीं है. वैनिटी में आप एक ही रोज़ वाटर टोनर रख सकते हो. सो इट्स वेरी असेंशियल. आप 100 टोनर रखने की बजाय मैंने एक नॉर्मल सा रोज़ वाटर ले लिया एक स्प्रे बॉटल में, तो मैंने उसको लेबल कर दिया इस तरह से. दिस इज होममेड पाउडर. तुम हिला रही हो. ये ओके गाइज, अब हम फिल कर रहे हैं आईब्रोज. ये हम कर रहे हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आज का. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अनास्तासिया का ब्राउ पोमेड. और हम तेल से फिलिंग स्टार्ट करेंगे.
गाइज आई होप आप लोग ध्यान से सारी चीज़ें देख रहे हो और ये भी देख रहे हो कि मैं ब्रश कैसे पकड़ रही हूँ, कैसे चला रही हूँ और किस तरह से काम हो रहा है. Which moisturizer you have used? I have not used any moisturizer. I have just cleansed and toned the face. क्योंकि पहले हम आई मेकअप करते हैं तो उसका फॉल आउट होता है, वो क्लीन करना पड़ता है, तो उसमें मॉइस्चराइजर भी क्लीन हो जाएगा. इसके लिए पहले हम आई मेकअप करेंगे और बाद में मॉइस्चराइजर लगाएंगे. We can use brown color only for eyebrow filling, not dark. You cannot use dark black color or something like that. Only dark browns you can use because आपके आईब्रो का लॉजिक ये है कि आपका आईब्रो आपके हेयर के साथ मैच होना चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका देखो हेयर कभी भी ना जेट ब्लैक नहीं होता है, ठीक है, उसमें एक हल्का सा ब्राउन का टोन होता ही है. सो यू हैव टू एड अ लिटिल ब्राउन शेड टू योर आईब्रोज. इसमें प्रोडक्ट का नाम लिखना. ओके गाइस, तो ये हमने ब्राउ फिल कर दिया है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. तो अब हम ब्राउ फिल करने के बाद इसमें आई बेस करने वाले हैं. आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का व्हील इन द शेड AC003. ओके, और इसमें मैं ये लाइट वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ. ब्रशेज मैं यूज़ कर रही हूँ काट कॉस्मेटिक्स के. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन आई बेस. और आपका आई बेस कभी भी आपके नॉर्मल स्किन टोन से 2 से 3 शेड लाइट होना चाहिए. क्यों लाइट होना चाहिए? ताकि आपके आई शैडो के कलर्स पॉप आउट हो सके, इसके लिए लाइट होना चाहिए. इसे सो गाइज, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ब्राउज और आई बेस, यू कैन आस्क मी नाउ. और इन केस अगर गाइज आपके क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, प्लीज़ रिपीटेडली आस्क करें. अच्छा, देखो कोई क्वेश्चन है? Do you sanitize your eyebrow palette? Yes, I did. But after every makeup I do, I sanitize all my cosmetics.
करने के टाइम पे सैनिटाइज नहीं करना, उसको पहले से ही सैनिटाइज करके रखना है नेक्स्ट यूज के लिए। So this is called eyebrow mapping. It's a very important step. मैम आपने ये वाला कंसीलर क्यों यूज़ किया? इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, आप कोई भी लिक्विड या क्रीम कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मुझे ये हैंडी रहता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, मतलब मुझे आदत पड़ गई है इसकी हमेशा से। So this is called eyebrow mapping. It's very important कि आपकी आईब्रो करेक्ट शेप में हो और दोनों मैच करती हो। ओके, ट्विंस नहीं होती हमारी आईब्रोज, कभी भी सिस्टर्स होती हैं। तो अगर थोड़ा 19-20 आपका दिखता भी है तो वो आपके बेसिकली आईब्रो के बालों की ग्रोथ वैसी है। You be doing shimmery eyes? Yes, but in an easy way. I will show you how to do it. Can we use moisturizer on eyes before applying eye base? No, you cannot. अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो बहुत ही स्टिकी और टैकी हो जाता है और आपका बेस रुकता नहीं है आईज का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आईलिड्स में नेचुरल ऑयल सिक्रीट होता है। Ma'am, I saw many time makeup artists are using white eye base. How the white eye base help? ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइट आई बेस से भी कलर्स उठ के आते हैं और ये लाइट आई बेस से भी कलर उठ के आता है। अभी आप ये देखोगे तो लगभग व्हाइट ही लग रहा है, भले लाइट शेड है लेकिन व्हाइट ही लग रहा है, राइट? तो एज सच कुछ नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते हो व्हाइट बेस। आप व्हाइट बेस भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। इस टाइम मेकअप पे पैचेस क्यों आते हैं? ऐसे टाइम मेकअप पे पैचेस क्यों आते हैं? इवन स्किन प्रेप अच्छे किया होता है तब भी। या तो आपकी मॉडल की स्किन बहुत ड्राई होगी, क्लीन नहीं होगी उसकी फेस, स्क्रब नहीं किया होगा, पैचेस ऑलरेडी उसके स्किन में होंगे शायद, इसके लिए। आपने स्किन प्रेप कैसी करी है? एक बार स्टेप किया ही नहीं है मैंने स्किन प्रेप अभी तक, मैंने सिर्फ क्लेंजिंग और टोनिंग किया है। लिक्विड कंसीलर यूज करते टाइम स्पैचुला में लगाए या डायरेक्ट? स्पैचुला में क्यों लगाना है? आप प्लेट में ले सकते हो लिक्विड कंसीलर, प्लेट में से मतलब अपने लिक्विड कंसीलर की बॉटल निकाल के प्लेट में ले सकते हो, फिर उधर से ब्रश से लेके लगा सकते हो। अभी मैं जेम्स चार्ल्स का पैलेट यहाँ यूज कर रही हूँ, उसमें मैं ये वाला शेड ले रही हूँ थोड़ा बस, ठीक है। और एक ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर मैं इसे ट्रांजिशन शेड ऐड कर रही हूँ। आपको अच्छे से इसे ब्लेंड करना है, कहीं पर भी ब्लॉच या पैच नहीं छोड़ना है, ब्रश बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है। लिक्विड कंसीलर यूज करते टाइम स्पैचुला में लेंगे, कुछ लोग डायरेक्टली भी यूज करते हैं। डायरेक्टली यूज करना इज नॉट हाइजीनिक। अगर आप प्लेट पर, स्टील प्लेट पर निकालते हो तब आप सही तरीका है वो यूज करने का। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो एक तो ज्यादा लग जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्ट वेस्ट होगा, दूसरा आपका सैनिटाइजर भी वेस्ट होगा, आपको उसको सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। प्लीज ब्रीफ स्किन प्रेप स्टेप अगेन। आई हैव नॉट डन एनी स्किन प्रेप, मैंने सिर्फ क्लेंजिंग की है, यानी हमारी मॉडल ऑलरेडी फेस वॉश करके आई थी, उसके बाद मैंने माइसेलर वाटर से फेस क्लीन किया है
और रोज वाटर लगाया है, दैट्स इट। अभी तक मैंने कोई स्किन प्रेप नहीं किया है। दिस इज हाउ आवर ट्रांजिशन शेड लुक्स। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक शेड किया है, ये ट्रांजिशन शेड है। अब हम सेकेंड शेड करेंगे शेडर ब्रश के ऊपर। गाइस कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज एक थम्स अप डाल दीजिए। अब मैं इसी पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी। नहीं दिख रहा है। हाँ। और हम इसे आउटर वी पे लगाएंगे। वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। आई कॉर्नर पर नहीं लगाएंगे क्या ट्रांजिशन शेड? इनर कॉर्नर पर नहीं लगता है ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड बाहर से 3/4 तक ही लगता है। So this is the dark brown shade that we are applying on just outer V. अब मुझे फर्स्ट वाला ब्रश और अगर आपकी कोई लाइंस आ गई है दोनों कलर के बीच में तो आप फर्स्ट वाला ब्रश लेके उसे क्लीन कर सकते हो। What is the mean transition shade? ट्रांजिशन शेड वो होता है कि आपका जो सबसे लाइटेस्ट शेड होता है आई शैडो का, जिससे ऐसा लगता है कि आपका आई शैडो यहाँ से शुरू हो रहा है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड्स कभी भी लाइट कलर के होते हैं। फ्लैट कलर से Black color? Eye base is the concealer, right? यस सेपरेट आई बेसिस भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो भी ले सकते हो, बट आई थिंक वो फिजूल का खर्चा क्यों करना, आप नॉर्मल कंसीलर को भी एज अ आई बेस यूज कर सकते हो। मैं एक मैट आई शैडो लूंगी। Which palette are you using? I'm using Morphe James Charles palette. It's one of the best eyeshadow palettes. अभी मैट आई शेडो मतलब मैट होता है ना, वो दिखता नहीं है उसमें शिमर है या ग्लिटर है। नाउ दिस इज अ मैट आई शेडो, आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। ये बहुत अच्छा लगता है फॉर सम सिंपल फंक्शंस। अगर प्रियांशी को कोई घर के शादी के फंक्शन में जाना है जो घर के अंदर है, उसके लिए आई थिंक ये आई शेडो इनफ है। या फिर कोई डे टाइम फंक्शन है जहाँ ग्लिटर और ग्लैम की जरूरत नहीं है, तो दिस आई लुक इज इनफ। आप इसके बाद आप इस पे शिमर भी ऐड कर सकते हो। मैग्नेट वाला
लाइट लो नहीं है डियर, आपके फ़ोन की लाइट लो है मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारी लाइट एकदम अप्रोप्रिएट है। ये मैट आई शेडो पैलेट नहीं है, इस पे शिमर भी है, दोनों मिक्स है। दिस इज मॉर्फी जेम्स चार्ल्स। अब इसमें हम हल्का सा शिमर ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का पैलेट, मैग्निफिसेंट पैलेट, विच आई एम रियली सॉरी टू से दैट दिस इज़ डिसकंटिन्यूड, अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसमें ये शैम्पेन शिमर शेड लूँगी। Can you suggest some affordable eyeshadow palette? You can check out one Instagram page, makeup and more official. You can check out that page. They have very good eyeshadow palettes. उनके पास मॉर्फी, अनास्तासिया इतने हाई एंड ब्रांड्स भी है, साथ में उनके पास बहुत अच्छे आई मैजिक, यू कैन बी के भी पैलेट्स हैं जो बहुत पिगमेंटेड है। तो आपको नाम यहाँ पर मिल जाएगा चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, शिमर मैंने फिंगर पे ले लिया है। 5 आवर बाद माउथ एरिया और अंडर आई ग्रे क्यों पड़ जाता है? क्योंकि आप उसके नीचे कलर करेक्शन नहीं कर रहे हो, इसके लिए ग्रे पड़ जाता है। प्लीज सजेस्ट सम अल्टरनेट ऑफ दिस शिमर पैलेट। You can use any shimmer from any palette. एक बार आई शेडो कलर बता दो कौन सा यूज किया है आईज पर। मैं बताती हूँ। ये मॉर्फी का जेम्स चार्ल्स पैलेट है, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला ट्रांजिशन शेड लिया था, उसके बाद हमने ये डार्क ब्राउन शेड आउटर कॉर्नर में लिया था, फिर हमने ये मैग्निफिसेंट पैलेट में से ये शैम्पेन शिमर शेड लिया है। मुझे शेडर भेज दो। So it's a very easy 3-step eye look. First finish the look. सो गाइज देख सकते हो कि कितना थोड़ा सा ही मैंने शिमर लगाया है, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू जानवी, थैंक यू सो मच। तो आप इसको मैट भी रख सकते थे और आप इसको ग्लिटरी भी कर सकते हो। अब हम इसको लाइनर लगा के फिनिश करेंगे। This is a very easy 3-step eye look and believe me guys, you can do this on brides also. It looks very nice. अगर किसी को subtle eyes चाहिए ना, तो आप ये brides के ऊपर भी कर सकते हो। अब हम लाइनर लगाएंगे। Must vista eyes. Thank you so much. Winner is the different part of me turning out pretty. Thank you so much. ओके गाइस, पहले हमने एक नॉर्मल सा बार लाइनर लगा लिया है, सिंपल सा।
उसके बाद हम इसमें विंग क्रिएट करेंगे। विंग क्रिएट करने के लिए कभी भी घाई नहीं करनी चाहिए। Suggest some eyeliner tips for beginner because my hands are really shaky. Will apply. Every day you have to apply 2 liners, one on yourself and one on somebody else. और आपका लाइनर लिक्विड होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मैं बिगनर हूँ तो मैं स्केच पेन लाइनर यूज़ करूँगी तो वो नहीं चलेगा। आप लाइनर में कभी भी एक्सपर्टीज नहीं ला पाओगे। आपको लिक्विड लाइनर से ही 100 बार प्रैक्टिस करना है। 90 डेज, आपको 90 डेज रोज प्रैक्टिस करना है और 2 बार लाइनर लगाना है। एक बार खुद पे लगाना है और एक दूसरे पे लगाना है और रोज अलग लाइनर आपको लगाना है, तब जाके आपका लाइनर अच्छा लगेगा। अगर आप बोलोगे इसकी कोई टिप या ट्रिक है तो यही सबसे बड़ी इसकी ट्रिक है कि आपको रोज प्रैक्टिस करना है। Which brand liner you are using? I am using Forever 52 paraben free liner. Eyes open. Okay. अब हम विंग क्रिएट करेंगे। प्रियंशी यहाँ देखो। हेलो, कैसे हो आप? Forever 52. Have you done skin prep? Ma'am, I have a question. मैं practice मेरे face पे ही नहीं करती। पढ़ो जोर से। I have a question. मैं प्रैक्टिस मेरे फेस पे ही मेकअप प्रैक्टिस करती हूँ, बट नॉर्मल एवरीडे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टेक्निक बता दो। इट कैन हेल्प मी टू ग्रो अप। You have to practice on somebody else if you have to become a makeup artist. खुद पे कितना प्रैक्टिस करोगे आप? तो आपको दूसरे पे ही प्रैक्टिस करके मेकअप आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। और आपको आपकी कोई फ्रेंड को, सिस्टर को या नेबर्स को पकड़ के मेकअप करना पड़ेगा रोज। और बिलीव मी गाइस, लॉट ऑफ फ्री मेकअप्स विल टेक यू टू अ प्रोफेशनल पेड गिग्स। अगर आप पहले से ही बोलोगे कि मुझे बिना किसी का प्रोफाइल के लोग पैसे दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारे फ्री मेकअप्स करने पड़ेंगे। Is it? बड़ा लंबा हो गया। बराबर है। Eyes up, कैमरा में देखो। Yes. बराबर जिया, आपको ये पता करने के लिए एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा कि कौन से आइज पे कैसा मेकअप करना है, क्योंकि वो सारा चीज़ें इतना डीप में मैं यहाँ पर क्लास में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसकी बहुत थ्योरी है और उसके बहुत डूज एंड डोंट्स हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप एक प्रोफेशनल का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट को परफेक्ट थ्रेडिंग आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लाइंट ने ब्राउज नहीं किए हैं, आप हमेशा आईब्रो रेजर्स रख सकते हो। आप हमेशा आईब्रो रेजर्स रख सकते हो और थ्रेडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी। बट येस, जब भी आपकी ब्राइड बुक होती है तब आप उसको उसके डूज एंड डोंट्स की लिस्ट भेजो और उसमें लिख के भेजो कि उसको आईब्रोज करके आना है। ओके गाइज, तो हमने यहाँ पर आई मेकअप कर लिया है, आईब्रो और आई मेकअप कर लिया है। आई होप आप लोग को ये समझ आया।
इफ योर आईलिड्स आर रियली ऑयली ना, तो आपको पहले तो वेरी माइल्ड पार्टिकल का स्क्रब आइस के ऊपर रब करना है, वेरी माइल्ड, बिल्कुल उसमें ग्रैन्यूल्स ज़रा भी हार्ड नहीं होने चाहिए. उसके बाद आपको क्लेंजिंग करनी है, फेस वॉश करके आप कोई भी एक हाई कवरेज मैट कंसीलर लगा के आई बेस बनाओ, तो आपका आईलिड ये नहीं होगा. आपका मेकअप स्टूडियो है या पार्लर? पार्लर नहीं है, मेरा मेकअप स्टूडियो है. आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. अब हम सारा फॉल आउट अंडर आई पे से क्लीन कर रहे हैं, जो आई शेडो करते वक्त गिरा था नीचे. प्लीज लाइव सेव कर देना. आई कांट से गाइज लाइव सेव करना है कि नहीं. मेरी हुडेड आईज है तो लाइनर से सब हाइड हो जाता है. आपको लाइनर लगाना ही नहीं है हुडेड आईज वालों को. हाउ टू स्टार्ट मेकअप करियर? उसके लिए आप मेरा 99 रुपीज का कंसल्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी गाइडेंस देती हूँ, रोड मैप देती हूँ कि आपको आपका करियर कैसे स्टार्ट करना है. और अगर ऑलरेडी आप आपके करियर में हो लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो उसकी भी गाइडेंस लेने के लिए आप मेरा एक 99 का कंसल्टेशन है वो ज्वाइन कर सकते हो. आई मेकअप आर लुकिंग सो क्यूट. थैंक यू. आई मेकअप मिस हो गए. हो नहीं एंजल वो शायद से अभी ज्वाइन किया. आई एम सॉरी अगर आपका आई मेकअप मिस हो गया है तो, बट अभी हम बेस करने जा रहे हैं. गाइज मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल है निकी अरोरा MUA. यस, वाइपिंग विथ क्लेंजर. क्लेंजर मतलब माइसेलर वाटर से हम क्लीन कर रहे हैं. You can Koyal DM me on my Insta handle, that is Nikki Arora MUA. Namu, you can DM us on Nikki Arora MUA or you can WhatsApp us on the given number. इस पे लिखो क्वेश्चंस रीड करो तुम. हाउ टू हाइड पिगमेंटेशन बाय मेकअप? अभी हम देखेंगे वो, क्योंकि प्रियांशी को भी थोड़ी पिगमेंटेशन है. Which eyeliner you have used? I've used liquid liner from Forever 52. Guys, I'm posting my Insta handle and my WhatsApp number. I have pinned my Insta handle and WhatsApp number, so you can check that out. मोस्ट ऑयली स्किन और कौन सा फाउंडेशन जाएगा? ऑयली स्किन में मैट फाउंडेशन जाएगा हाई कवरेज का. अगर ब्रांड्स आप मुझसे पूछो तो अफोर्डेबल में मेबलिन सुपरस्टे है, पैक का स्टूडियो फाउंडेशन है और फॉरएवर 52 का भी HD स्टूडियो फाउंडेशन है. अब क्लेंजिंग के बाद हम यहाँ पे टोनर लगा रहे हैं फिर से, क्योंकि हमने वो वाइप आउट कर दिया था पूरा. गाइस बिलीव मी, अगर आप ये आई लुक कोई ब्राइड को भी करते हो ना, तो योर ब्राइड विल फॉल इन लव विथ यू. क्योंकि अगर वहाँ पे ऑयल सिक्रीशन है तो आप बराबर प्राइमर यूज नहीं कर रहे हो. लाइनर यूज करने से मना नहीं किया मैंने, आपको स्केच पेन लाइनर यूज करने से मना किया. क्योंकि अगर आप स्केच पेन लाइनर का सहारा लोगे तो पहली बात आप आपके क्लाइंट के सामने अनप्रोफेशनल लगोगे. दूसरी बात, आपको कभी भी लिक्विड लाइनर पे हाथ नहीं बैठेगा. तो इसके लिए जब भी आप प्रैक्टिस करो, लिक्विड लाइनर के साथ ही प्रैक्टिस करो. HD और नॉन HD में फर्क ये है कि HD इज अ हाई डेफिनेशन मेकअप. सामने भी वैसा दिखता है और कैमरा में भी सेम दिखता है. फ्लैशबैक नहीं आता है. अगर आप 90s और 80s के रेड कार्पेट फोटोज देखोगे सेलिब्रिटीज के जो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, उनके अंडर आई और माउथ एरिया के पास व्हाइट कास्ट होती थी पाउडर की, तो वो नॉन HD पाउडर्स होते थे.
इसके लिए वो वाइट कास्ट दिखती थी, लेकिन जब आज के मार्केट में सारे एचडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां पर आपको सब कुछ एचडी मिलता है, तो आपको कुछ भी फ्लैशबैक नहीं आता है, कुछ भी वाइट कास्ट नहीं दिखता है, सब एकदम सीमलेस लगता है। आपके मॉडल की स्किन ऑयली है या नॉर्मल? कॉम्बिनेशन स्किन है हमारी मॉडल की, ड्राई टू नॉर्मल। What type of skin does the model have? Normal skin? Okay guys, I've pinned down my Instagram handle and my WhatsApp number, so you can get in touch with us for 99 rupees consultation। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, मैंने लिया है निविया मॉइस्चराइजर, और आप कोई भी नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर ले सकते हो। एक फ्लैट ब्रश से मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। इट इज नॉट राइट टू अप्लाई मॉइस्चराइजर विथ हैंड्स। एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाइजीन पर्पस के लिए इट्स नॉट गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हाथ से ही लगाना है, तो प्लीज आप अपने क्लाइंट से पहले परमिशन लो कि आप उसके फेस को टच कर सकते हो कि नहीं अपने फिंगर्स से। अगर आपका क्लाइंट परमिशन देता है तो आप मॉइस्चराइजर अपने फिंगर्स से लगा सकते हो। हाउ टू फाइंड द टाइप्स ऑफ स्किन? स्किन टाइप फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी सी टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, फर्स्ट स्टेट, जो आपका फर्स्ट स्टेट रहता है, जैसे आप उठते हो, अगर आपका नोज और टी जोन एरिया ऑयली है और बाकी का फेस ड्राई है, तो आप कॉम्बिनेशन हो। अगर आप ग्रीसी बॉल की तरह उठ रहे हो, यानी पूरे फेस पे ऑयल है, तो यानी आप ऑयली स्किन हो। भले आपने रात को कोई भी स्किन केयर किया है, कुछ भी किया है, लेकिन अगर आपका सुबह स्टेट ऑफ स्किन ऐसा है, तो वो आपका स्किन टाइप वैसा ही रहेगा। अगर आप फुल ऐसी खींची खींची स्किन की तरह उठ रहे हो, तो यानी आपकी स्किन ड्राई है, और अगर आपकी स्किन में कोई इशू नहीं है, तो मतलब आपकी स्किन नॉर्मल है। अच्छा, ये तो खुद की स्किन का पता लगाना हो गया। दूसरे की स्किन कैसे पता लगाओगे? दूसरे की स्किन आपको क्लाइंट को ही पूछनी है कि मॉर्निंग में जब उठता है तब उनको कैसा फील होता है। आप देख सक रहे हो, मैंने एकदम अच्छे से मॉइस्चराइजर सब जगह लगा दिया है फेस पर। यू हैव टू टेक योर टाइम एंड अप्लाई वेरी नाइसली। ये सेट ऑन योर फेस। Do not forget neck. Moisturizer for all type skin? Nivea is for all skin type moisturizer। सिर्फ ऑयली स्किन होगी ना, तभी आपको क्वांटिटी कम लगानी है निविया की, बट लगानी है। मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन ब्रश को भी वॉश करते रहना होगा? यस यस, सब ब्रशेस आपको वॉश करने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश ऑल ऑफ योर ब्रशेस। Which moisturizer you are applied? आई एम अप्लाइंग निविया। निविया सॉफ्ट, डब्बा दिखा दो। ये हमारा मॉइस्चराइजर है। स्पॉटलाइट आई मेकअप कौन से आईज पर करना चाहिए? आप कोई भी आईज पे मेकअप कर सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि आंखें खुलने के बाद वो मेकअप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यानी उसकी हुडेड आईज है। हुडेड आईज है तो सिंगल आई शेडो ही लगता है। और आप कभी भी हुडेड आईज का एग्जाम्पल आपको चाहिए ना, तो आप आलिया भट्ट को देख सकते हो, उसकी हुडेड आईज है। कभी भी वो सिंगल मैट आई शेडो लगाती है। शी डजंट गो फॉर एनीथिंग एल्स। हाउ टू वॉश मेकअप ब्रशेस? मेकअप ब्रशेस धुलने के लिए आप यूज कर सकते हो मेकअप क्लेंजिंग सोप, जो हमारा खुद का प्रोडक्शन है। यू कैन बाय दैट फ्रॉम अस, ठीक है। सो इट्स अ मेकअप क्लेंजिंग सोप दैट यू कैन बाय फ्रॉम अस। वी हैव 4 प्रोडक्ट्स। वन, वी हैव अ ड्राई ब्रश क्लेंजर। जैसे आप मेकअप कर रहे हो तो आपको ये ब्रश क्लेंजर यूज कर सकते हो। ये भी हमारे पास मिल जाता है। और ऐसे ही डब्बे में एक सोप आता है हमारा खुद का, जो आप यूज कर सकते हो ब्रश क्लीनिंग के लिए। और कॉस्मेटिक सैनिटाइजर भी हम लोग सेल करते हैं, जो मेरा खुद का प्रोडक्शन है। और मेकअप ब्लेंडर, यानी आप देखते होंगे कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट फाउंडेशन में एक छोटा सा लिक्विड मिक्स करते हैं, उसको लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूई और बनाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए या पतला करने के लिए।
तो वो मेकअप ब्लेंडर बोला जाता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी खुद की प्रोडक्शन है, so you can buy that from us. Whatever queries you have, you can DM us on Instagram or you can WhatsApp us on the given number. अभी हम लगाने जा रहे हैं प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर मैंने यहाँ पर लिया फॉरएवर 52 का मॉइस्चर बेस्ड प्राइमर, विच इज दिस वन। थोड़ा और ऐड करो, नाम नहीं दिखा। हाँ ओके, दिस इज द प्राइमर। ये मैंने इसी प्लेट पर निकाल लिया है, फ्लैट ब्रश से मैं लगाऊंगी। प्राइमर का क्या काम है मुझे कौन बताएगा? चलो चैट बॉक्स में मुझे बताओ प्राइमर का, कमेंट सेक्शन में बताओ प्राइमर का काम क्या है। मुझे एक फॉर्म पहुंचे, बताओ मुझे पढ़ के किसी ने जवाब दिया। आपने जो लिक्विडेटर बताए फाउंडेशन मिक्स करने के लिए, उसे यूज करने से मेकअप केकी तो नहीं पड़ता है? नहीं, मेकअप केकी नहीं होता। इनफैक्ट आपका अगर मोटा फाउंडेशन है, थिक फाउंडेशन है, और अगर आपको उसको रनी कंसिस्टेंसी करना है और उसके अगर 2 ड्रॉप्स आप मिला लेते हो तो बहुत सही हो जाएगा। पोर टू मिनिमाइज करता है, पोर को मिनिमाइज करता है? नहीं नहीं, वो पोर मिनिमाइजर नहीं है, वो मेकअप ब्लेंडर है। वो आप खाली फाउंडेशन में नहीं, आप अपने कोई भी जेल लाइनर वगैरह जो ड्राई हो गया है उसमें भी डाल दोगे 2 ड्रॉप, तो बहुत अच्छे से आपका जेल लाइनर रिवाइव हो जाएगा। साथ ही में आप उसको पिगमेंट्स लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो, या आप लिक्विड लाइनर बना सकते हो कोई भी उस मेकअप ब्लेंडर से, कोई भी कलर का। क्लोज द पोर्स? पोर्स नहीं क्लोज होते हैं उससे, मेकअप ब्लेंडर से। अरे प्राइमर की बात कर रहे हैं आप, क्वेश्चन किए ना, सब आंसर है। अच्छा हाँ, पोर क्लोज करने के लिए प्राइमर नहीं लगा रहे हैं हम प्राइमर लगा रहे हैं स्वेट रोकने के लिए भी नहीं। प्राइमर का काम है, कोई भी प्राइमर का ये काम है कि आपका स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर बनता है। प्राइमर एक शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है। और मैंने जो अभी प्राइमर लगाया है वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ऑल स्किन टाइप, और ओपन पोर्स को ब्लर करने के लिए, स्वेटिंग को कम करने के लिए प्राइमर यूज करते हैं। जी नहीं, ये ऑल स्किन टाइप प्राइमर तो शील्ड की तरह यूज होता है। ओपन पोर्स का प्राइमर आपको सिर्फ पोर्स के एरिया पे लगाना है, उसके पोर्स बंद करने के लिए, ओके। और मैटिफाइंग प्राइमर भी वही पोर्स के एरिया पे लगाओगे तो आपका पोर्स मैटिफाई हो जाएगा। Okay guys, now we are about to start with the base. अभी तक प्रियांजी के फेस पे, हमारी मॉडल के फेस पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ स्किन प्रेप किया है हमने। मेरा ब्रश तो कौन सा ब्रश, यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ पैक का स्टूडियो HD कंसीलर, ओके। ये मैं कर रही हूँ कलर करेक्शन। तो जरूरी नहीं आपका कलर करेक्टर ऑरेंज कलर का ही होना चाहिए, आपका कलर करेक्टर आपकी पिगमेंटेशन के शेड का भी हो सकता है, जो एग्जैक्ट प्रियांशी का शेड है राइट नाउ। प्लीज टेल मी हैवी स्वेट कैसे रोके फेस से? आपको पाउडर अच्छे से करना है, और आपको वाटरप्रूफ पाउडर यूज करना है जो आता है लॉरा मर्सियर का। What is more important, a good primer or a good foundation? Everything is important in makeup. All products should be good. Nothing can be compromised. Can we skip moisturizer because my skin is very oily? You can use water-based moisturizer if your skin is oily, but you have to use a moisturizer.
Tell me some waterproof powder. You can use Laura Mercier. You can use Huda Beauty. These are all waterproof powders. जहाँ जहाँ प्रियांशी को पिगमेंटेशन है हम वहाँ वहाँ ये यूज कर रहे हैं. Blender. Okay guys, any more questions you can ask me regarding this जब तक हम इसे blend कर रहे हैं. Moisturizer for dry skin you can use. For makeup you can use Nivea Soft and you can use Forever 52 का this bottle that I'm going to show you. So this is a very good bottle from Forever 52. You can use this for dry skin. And obviously you can use Embrolis. That is also a very good moisturizer. I have not used any foundation. अभी मैंने Studio Concealer use किया है Pack Cosmetics का in the shade Fresh Brew. No, हाँ Fresh Brew in the shade Fresh Brew. आपको मेंशन किया गया है कमेंट सेक्शन में Fresh Brew. ओके गाइज, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे. आप मॉडल की स्किन शेड का कंसीलर यूज क्यों कर रहे हो? नहीं, मॉडल की स्किन का शेड नहीं यूज कर रही हूँ मैं, उसकी पिगमेंटेशन का शेड यूज कर रही हूँ जो उसको पिगमेंटेशन है. उससे मुझे कंसीलर ब्रश दो. आपने कलर करेक्टर क्यों यूज किया, ऑरेंज नहीं किया? ऑरेंज तब यूज करते हैं जब वो पिगमेंटेशन का कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है. यहाँ पे पिगमेंटेशन का कलर इतना डार्क नहीं था कंपेयर टू हर ओन स्किन टोन. यानी स्किन टोन से बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा पिगमेंटेशन का, तब आपको ऑरेंज यूज करना है. दूसरा भी दो. वो तो लगाए उसका शेड है ये तो वाइट. मिक्स करना पड़ेगा. ओके गाइज, यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ पैक के 2 कंसीलर्स है ये. दिस इज पाइनवुड एंड फ्रेश ब्रू. लाइट वाला शेड इज पाइनवुड, ये वाला है फ्रेश ब्रू. ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा स्कूप आउट करूंगी कंसीलर. और थोड़ा सा डार्क शेड भी लूंगी मैं, और इससे हम करेंगे मिक्स. क्योंकि अगर सिंगल शेड लूंगी ना तो वो प्रियांशु के लिए बहुत लाइट है, तो इसके लिए मैं दोनों शेड को मिक्स करना चाहती हूँ और इसका एक्चुअल शेड बनाना चाहती हूँ. तो आप देख सकते हो कि ये प्रियांशु का एक्चुअल शेड बन चुका है. लो, ये लो मेरा आंसर. ठीक है, अब मैं कंसीलर ब्रश लूंगी और इसे मैं लगाऊंगी ऑल ओवर फेस. ये हम कर रहे हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक. सिंपल है लॉजिक. आपको आपका स्किन शेड का या पिगमेंटेशन के कलर का कलर करेक्टर लगाना है. ऑरेंज लगाना जरूरी नहीं होता है हर बार.
और ऑरेंज लगाने से क्या होता है, जबरदस्ती अगर आप ऑरेंज लगाओगे फिर फाउंडेशन लगाओगे तो आपका फाउंडेशन शेड में से ऑरेंज बाहर दिख के आएगा। इसके लिए हम ऑरेंज सब जगह नहीं लगाते हैं। Questions? Yes, sir. कभी कभी तो ऑरेंज करेक्शन से भी डार्कनेस नहीं जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हो या आप गलत ब्रांड का लगा रहे हो जिसकी कवरेज नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप देख सकते हो मैंने कितने कम क्वांटिटी में पूरे फेस पे इसकी कंसीलर लगाया है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। Why we use concealer all over face? क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, फाउंडेशन नहीं है, ब्राइड नहीं है, तो आप जबरदस्ती फाउंडेशन लगा के इसे हैवी क्यों करना चाहते हो? Cream foundation are good in rainy season. ऐसा कुछ नहीं है, रेनी सीजन के ऊपर मेकअप नहीं होता है, आपके स्किन के ऊपर मेकअप होता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लग रही है, चाहे वेदर कोई भी हो, अगर आपको ड्राई लग रही है उस वेदर में, तो आप ड्राई वेदर के लिए क्रीम प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। कभी कभी तो ऑरेंज करेक्शन से भी नहीं होता है। आपका ऑरेंज करेक्टर का तरीका गलत है, इसके लिए आपका ऐसा हो रहा है। बोलो। सेम हम कंसीलर हल्का हल्का नेक पर लेके जाएंगे नीचे। आप कब से मेकअप प्रोफेशन में हैं? मैं 5 साल से हूँ इस फील्ड में। डर्मा पैलेट यूज किया था मैंने फॉर ऑरेंज करेक्शन। और आपकी स्किन टाइप क्या है जिन्होंने डर्मा यूज किया है? सारा। आपने जो प्राइमर यूज किया वो हर स्किन टाइप के लिए है? यस, ऑल स्किन टाइप के लिए। फेस टर्न करो इस तरह। फाउंडेशन से पहले कंसीलर क्यों लगा रहे हैं पूरे फेस पर? फाउंडेशन लगाने ही नहीं वाली हूँ मैं। नोज पे से फाउंडेशन फट जाता है, क्या करें? आप प्राइमर नहीं लगा रहे हो नोज के पास, इसके लिए वो ऑयल सिक्रीट हो रहा है और वहां पर फाउंडेशन फट जा रहा है। नोज एरिया कुछ टाइम पैचेस होता है। स्क्रब करो नोज एरिया को प्रॉपरली और वहां पर स्किन प्रेप मॉइस्चराइजर प्राइमर सही वाला लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका स्किन ड्राई था। शुड वी वेट द ब्लेंडर एवरी टाइम? यस। इतना ध्यान रखो, मेकअप हैज नो रूल्स बट हैज लॉजिक ऑलवेज। ओके गाइस, तो ये हो गई हमारी ब्लेंडिंग। आप देख सकते हो ऑलरेडी प्रियांशी की स्किन कितनी अच्छी लग रही है विदाउट एनी फाउंडेशन। ओके गाइस, अब टिल यहाँ तक कोई और क्वेश्चंस है? प्रियांशी, आपसे क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का, हर्षिता नाम है उनका। वो पूछ रही है आपको हैवी लग रहा है क्या फेस पे मेकअप? बिल्कुल नहीं। ओके, आई थिंक हर्षिता आपको आपका आंसर मिल चुका है। फाउंडेशन के क्रीम फॉर्म में ही होता है डियर। नेक वाला पोर्शन मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया है, बाकी नीचे और भी कर सकते हैं हम। Unable to get my actual shade foundation every time I purchase it is wrong one, please guide. आप
कहीं पर भी फिजिकली जाके फाउंडेशन खरीदें, ऑनलाइन फाउंडेशन ना खरीदें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप जाके सबसे पहले मैक्स स्टोर में जाके अपना फाउंडेशन खरीदें। Chin area is not looking grey. Her lips have a little pigmentation, so we will do the correction over there. उसकी लिप्स में पिगमेंटेशन है, चिन पर नहीं है पिगमेंटेशन। प्लस उनको थोड़े अपर लिप्स के हेयर है, तो अपर लिप्स के हेयर, कोई भी फेशियल हेयर ना आप हाइड नहीं कर सकते हो, तो मेकअप के बाद ना वो हेयर दिख के आते हैं, तो वो हेयर का इल्यूजन भी ग्रे लगता है। पाउडर पफ। अब हम इसका बेस सेट करेंगे। बेस सेट करने के लिए पहले हम अंडर आई से सारी क्रीजेस निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लॉरा मर्सियर का पाउडर, और एकदम हल्के हाथों से ऐसे लगा रही हूँ। How to hide dark circle? ये क्या हमने किया तो अभी हाइड। डार्क सर्कल प्रियांशी को भी थे। ये देखो, जिसका भी नोज के अराउंड ब्रेकेज होता है वो ये ध्यान से देखें, यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रेकेज होता है, तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पे अच्छे से पाउडर करना है। और हो सके तो प्लीज आप एक ऐसा ट्रायंगुलर पफ ले ले, ये बहुत काम आता है और एकदम सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। देखो बहुत ही लाइट हैंडेडली आपको पाउडर करना है। सेम आपको यहाँ पर सेंटर में भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये। अगर आप इसको अच्छे से लॉक नहीं करोगे तो वही ग्रे होना, फटना, यही सारी चीजें चलती रहेंगी। Do you suggest baking? No, I don't suggest baking for her because already उसकी अंडर आईज थोड़ी ड्राई है। अगर आप बेकिंग करोगे तो और क्रैकी हो जाएंगी। Different between loose powder and translucent powder? There is only one difference of the color. नॉर्मल लूज पाउडर में शेड्स आते हैं, कलर्स आते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है, वो कोई भी स्किन पे चला जाता है। ये मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग है? ये आराम से 8 to 10 आवर्स चलेगा, इसका 12 आवर्स भी चल सकता है। लिप्स आप ट्रैवल करते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट? यस, आई डू ट्रैवल। हम ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं ब्राइड्स के लिए। कैन वी डू पाउडरिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर इन अंडर आई? नो, यू कांट। ब्यूटी ब्लेंडर से आप पाउडर करोगे तो आधा पाउडर आपका ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है।
पाउडर यहाँ पे कंसीलर पाउडर दो। ठीक है, ऐसा ठीक है। हाँ नीचे अच्छा, हमारी जिन्होंने हमें मेकअप सिखाया है उनका ऐसा वे था कि वो हर फेस के स्टेप में लूज पाउडर यूज़ करती थी। करेक्ट किया तो लूज पाउडर करेक्ट किया तो लूज पाउडर, उसके बाद फाउंडेशन तो उस पर भी वेरी केकी बेस। तो आपको जब पता है कि वो बेस इतना पाउडर लगाएगी तो केकी होगा ही। वो केकी कैसे नहीं होगा, आप खुद सोचिए। इतना पाउडर हर स्टेप पे लगाएगी तो वो केकी ही होगा ना। और आजकल ब्राइड्स केकी पाउडर केकी बेस नहीं मांगती है, उन्हें चाहिए स्मूथ बेस जो एकदम नेचुरल दिखे। अगर आप उसको केकी बेस दोगे तो कैसे चलेगा। आपने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या यूज़ किए हैं, प्लीज़ उसका नाम बताएं। मैंने फाउंडेशन नहीं यूज किया है, लेकिन मैंने कंसीलर यूज किया पैक कॉस्मेटिक्स का। इस पे टाइम टू क्लोज इंस्टाग्राम बता रहा है। हाँ ओके कर दो। वो फेस अलग लग रहा है, मेकअप जी नहीं, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। मैंने फेस और नेक दोनों सेम रखा है। आई मेकअप प्रिटी लग रही है। थैंक यू। सारी पिगमेंटेशन हाइड हुई है गाइस। आपको मैं क्लोजअप दिखाती हूँ, देखिए। उसके लिप्स के ऊपर जहाँ लिपस्टिक लगनी है वहाँ पिगमेंटेशन है। और आपको जो ये अराउंड द माउथ दिख रही है यहाँ पर, ये उसके बाल है अपर लिप्स के। अगर मैं आपको और क्लोजअप करके दिखाऊं तो आपको ये 4 बाल दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं। ये देखो, दीज आर द हेयर्स। तो ये आपको ग्रे नजर आ रहा है अपर लिप्स के बाल। उसको वहां पिगमेंटेशन नहीं है गाइस। इतना क्लोजअप करके मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। इट इज ऑल आर अपर लिप्स का हेयर। प्रियांशी, डू नॉट कम विदाउट अपर लिप्स नेक्स्ट टाइम, ओके। जी नहीं, कहीं से भी जिया कंसीलर नहीं हटा है। आप प्लीज टेक्निक्स पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल भी कहीं पर भी कंसीलर नहीं हटा है। हमने अच्छे से सब जगह पाउडर किया है। थैंक यू सारा फॉर acknowledging it that it's the hair, not the pigmentation. एक टिश्यू पे क्लीन करो नहीं ब्रश। Okay guys, any more questions regarding the base? काउंटर भी करते थोड़ा सा, तक काउंटर भी ऐसे नहीं। मैं वैसे भी कर रही थी, मैं वैसे ही कर रही थी सारा।
ओके गाइज, अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं कॉन्टोरिंग, जिसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ पैक कॉस्मेटिक्स का कॉन्टोर पाउडर. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट और बहुत ही अच्छा पाउडर है. इट्स इन द शेड शोबिज स्पॉटलाइट ब्रॉन्जर बोलते हैं इसे. शोबिज शेड नेम है इसका. इट्स अ वेरी गुड कॉन्टोर पाउडर. ओके, अब हम यहाँ पर कॉन्टोरिंग करेंगे. जॉ लाइन, चीक बोन्स, सारी चीजें हम कॉन्टोर करेंगे. कोई भी मीडियम साइज का फ्लफी ब्रश लेके आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो. आप ऑलरेडी हाफ फेस देख सकते हो कि एक साइड कॉन्टोर हुआ है तो ऑलरेडी कितना लिफ्टेड लग रहा है, और दूसरे साइड नहीं हुआ है तो. जिया, आप लाइव छोड़ सकते हो अगर आपको कुछ खास नहीं लग रहा है तो. जी कैवलिन, हम अभी और चीज़ें इस पे फिनिशिंग टचेस देने वाले हैं, सो प्लीज स्टे टिल द एंड. ये हम यहाँ पर कॉन्टोरिंग कर रहे हैं. ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है. ये वेडिंग लुक, ब्राइडल लुक नहीं है जो आपको एकदम हाई एंड मेकअप दिखाया जाएगा यहाँ पर. ब्लश, अब हम ब्लश का एक ऐसा प्रोडक्ट लगाएंगे जो हमें ब्लश और हाईलाइट दोनों का काम करने के लिए इजी हो जाएगा. नोज की कॉन्टोरिंग हमारी बाकी है अभी. पहले हम नोज की कॉन्टोरिंग करेंगे. नोज की कॉन्टोरिंग के लिए मैं इस तरीके का एक एंगुलर ब्रश ले लूंगी. सेम कॉन्टोर पाउडर लूंगी मैं इस पर, और यहाँ पर हम करेंगे नोज की कॉन्टोरिंग. बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ स्ट्रेट आना है ऊपर से. ब्रॉन्जर नंबर शोबिज नाम है इसका, नंबर नहीं है इसका, शोबिज सिर्फ नाम है. looking very pretty and eye makeup is too awesome. Thank you so much. ब्लेंडर दे दो मेरे को. ये हमारी नोज कॉन्टोरिंग हो गई है. अरे बाटी में था ना, जल्दी दो. और इसे हम ब्लेंडर से सॉफ्ट कर देंगे. ओके गाइस, तो ये हमारी नोज कॉन्टोरिंग भी हो गई है. आप देख सकते हो कि नोज कॉन्टोर, फोरहेड कॉन्टोर नहीं करेंगे हम. उसका एक रीज़न ये है कि फोरहेड की जगह उसकी नोज की जगह की बराबर है. ये देखो ऐसे मेजर करते हैं. अगर ये डिस्टेंस नोज से एक्सीड करता था तो हम यहाँ पर कॉन्टोरिंग करते थे, वरना कॉन्टोरिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. सो ज़बरदस्ती कहीं पर भी कॉन्टोरिंग नहीं करना है आपको.
लगाओ ब्लश। ब्लश पैलेट के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉरएवर 52 का पैलेट, ठीक है। और मैं एक ऐसा ब्लश यूज करने वाली हूँ जिसमें हमें हाइलाइटर की जरूरत नहीं लगने वाली है, ठीक है। मैं ये पीच ब्लश लूंगी जो थोड़ा सा शाइनी है ऑलरेडी, और ये दोनों को मिक्स करूंगी मैं इस तरह। आप देख सकते हो बिना हाइलाइटर लगाए ये एग्जैक्ट हाइलाइटर का लुक दे रहा है, हमें अलग से हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्वेश्चंस आंसर। ब्लश, ब्रश नेम और नंबर। देयर इज नो नेम एंड नंबर। ये मास्टर स्ट्रोक सीरीज आती है पैक कॉस्मेटिक्स की, उसमें का ब्रश है ये। लर्न लॉट्स ऑफ फ्रॉम यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर, आई एम ग्लैड कि हम आपको सिखा सकें। वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ब्लश थोड़ा और लगा दो। मुझे ब्लेंडर दो। ओके गाइज, अभी हमारी 3 चीज़ें बाकी है। अब हम लगाएंगे लैशेस, उसके बाद हम करेंगे लोअर लैश लाइन का मेकअप, और साथ ही में हम लगाएंगे लिपस्टिक। ओके गाइज, तो ये सारी चीज़ें हमारी बाकी है। मुझे पफ दे दो और लाइनर दे दो। पहले हम लाइनर थोड़ा सा रीटच करेंगे, क्योंकि इतना मेकअप करने के बाद कभी कभी हमारा लाइनर फेड हो जाता है, तो उसे रीटच करना ज़रूरी है, क्योंकि लाइनर बेस से भी पहले हुआ है हमारा। ओके गाइस, दैट्स इट। इतना ही हमें करेक्शन का ज़रूरत था लाइनर का। अब हम लगाएंगे मस्कारा। गाइस, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेस अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। इट्स अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक गाइस, इट्स नॉट अ ब्राइडल मेकअप लुक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उतना ब्राइड जितना हैवी नहीं होने वाला है। लाइनर इज फ्रॉम फॉरएवर 52। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मस्कारा विच इज़ फ्रॉम फेरारूशी। ओके, और इसका ही हम थिक साइड लेंगे, नीचे देखो। और यहाँ पे देखो, सो गाइस हमने मस्कारा लगा दिया है। ब्लश पैलेट फॉरएवर। यस, ब्लश पैलेट इज फॉरएवर 52। उसमें हमने कोई सेपरेट हाइलाइटर नहीं यूज़ किया है, हमने फॉरएवर 52 के ही पैलेट से शिमर वाला ब्लश लगाया है। तो आप देख सकते हो कि ऑल इन वन काम हो गया है हमारा।
ऑलरेडी गाइस देखो मस्कारा से कितना फ़र्क पड़ गया है। अब हम लगाएंगे लोअर लैश लाइन पे पहले काजल। न्यू। I hope guys you are enjoying this look as much as I am enjoying आपको सिखाने में। मैं यहाँ पर न्यूड काजल लगा रही हूँ विच इज फ्रॉम अगेन पैक कॉस्मेटिक्स। नहीं डियर, मैंने आईलैश कलर यूज़ नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, और मैं अवॉइड करती हूँ आईलैश कलर यूज़ करना क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। स्मजर ब्रश और पैन। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्मजर ब्रश और सेम आई शैडो पैलेट। लोअर लैश लाइन का आई मेकअप कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। पहले मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड और उसके साथ मैं लाइट ब्राउन मिक्स कर रही हूँ जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन शेड था। ये आपको स्मजर ब्रश यूज़ करना है। दिस इज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक, 092 नंबर है इसका। इट्स अ वेरी गुड ब्रश। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रोफेशनल कोर्स करने में, इज एनीबडी योर अ फ्रेशर हु वांट्स टू ज्वाइन, वी हैव मल्टीपल कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। यू कैन ज्वाइन those courses here with us. सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। ओके गाइस, लोअर लैश लाइन का मेकअप हो चुका है। बहुत ही सटीक तरीके से धीरे धीरे करना है, ध्यान ध्यान दो। वो कैसे बोलूँ जब क्लास चालू है तो? मैं वो पढ़ रही थी। लाओ मेरे को सामान दो, लाइनर, ये मस्कारा दो लोअर लैश लाइन पे। ऑनलाइन क्लास फीस क्या है? ऑनलाइन क्लास फीस हमारी आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। मैं कोर्स को थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। इट्स अ बेसिक टू एडवांस मेकअप कोर्स। 2 हफ्ते का कोर्स रहेगा ऑनलाइन, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर की जाएगी, बताया जाएगा सब कुछ, और बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। फ्रॉम स्किन प्रेप टू लैश एप्लीकेशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस, आई शेडोज जैसे स्मोकी आईज, कट क्रीज, सारी चीज़ें हम बताएंगे उसमें। और प्लस आपको सर्टिफिकेट 2 टाइप के मिलेंगे इसमें। एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके फ़ोन पर आएगा, और एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपके घर पे हमारे एकेडमी का स्टैंप लगकर कुरियर होगा। For fee structure, you can always WhatsApp us or DM us on Instagram. ओके गाइज, लोअर लैश लाइन पर भी हमारा मस्कारा लग चुका है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। उसके लिए पहले हम लिप्स को आउटलाइन करेंगे एक लिप पेंसिल से। बेस्ट मेकअप फिक्सर वो अभी आप देखोगे, जब मैं लगाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। कभी भी मेकअप का बेस इनकम्प्लीट लगता है जब तक उस पर लिपस्टिक ना लगी हो।
तो पहले हम लिपस्टिक लगाएंगे, फिर लास्ट में हम लैशेस लगाएंगे. मैं एक न्यूड लिपस्टिक लगाने की सोच रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिप लाइन कर लूँगी. यहाँ पर मैं लिप पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैरी जो के की, ठीक है, विच इज़ अ वेरी स्मूथ लिप पेंसिल एंड इट्स वेरी गुड. ये शेड ठीक नहीं है तो हम दूसरी चेंज कर रहे हैं. फाउंडेशन यू कैन यूज़ ड्राई स्किन के लिए एले गोलो या फिर लॉरियल का इनफैलिबल भी बहुत अच्छा है. इसका ढक्कन नीचे से. ये मैंने दूसरा ब्राउन शेड लिया है मैरी जो के का, जो थोड़ा सा विजिबल है. कोई पर्टिकुलर लिप कलर आप लोग को देखना है गाइस? Any particular lip color you are willing to watch? इसको कॉस्मेटिक सैनिटाइज करो. I hope you guys are loving the eye look and the base. मेरे को लिपस्टिक पैलेट दे दो. ब्रश. मैं ये लिपस्टिक पैलेट यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52. इट्स अ वेरी गुड लिपस्टिक पैलेट. और इस पर अभी हम न्यूड शेड लगाएंगे ताकि हम आपको एक अच्छा सा ऑम्ब्रे लिपस्टिक एप्लीकेशन दिखा सकें कैसे होता है, जो आजकल बहुत इन है. सारे सेलिब्रिटीज़ यही लिपस्टिक एप्लीकेशन फॉलो कर रहे हैं. गाइस आपको ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं या मैट? ओके गाइस, so this is an ombre लिपस्टिक एप्लीकेशन जो अभी पूरा नहीं हुआ है. सो आप देखते रहिए कि कैसे इसे हम पूरा करेंगे. सबको ग्लॉसी लिपस्टिक में निकालो ग्लॉस.
ओके गाइज, लिपस्टिक एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है. हमें सिर्फ लिप ग्लॉस लगाना है सेंटर में. ओके गाइज, अभी हम बहुत सारे Q&As आंसर करने वाले हैं और आपको बहुत सारे बोनसेस देने वाले हैं रिगार्डिंग स्किन केयर एंड टिप्स. तो एंड तक बने रहिए. मैं मेरे 5 फेवरेट प्रोडक्ट्स आपको रिवील करूंगी जो मैं ब्राइड पे यूज़ करती हूँ. Okay guys, so this is how her glossy lips look. आप लोग को मैं लाइटिंग थोड़ी ब्राइट कर देती हूँ. मुझे ना लिप पेंसिल देना होगा इसे. ये ब्रशेस जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. ब्रश कंसीलर ब्रश. गाइस, कभी भी ऐसा हो तो आपको नीचे से लिपस्टिक को करेक्शन देना है. बंद करो, बंद करो तुम्हारे लिप्स. So this is the technique of cleaning the lipstick. आई होप गाइज कि आप लोग को ये लुक पसंद आया. अब हम फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं. एनी मोर क्वेश्चंस गाइज? इफ यू हैव यू कैन आस्क मी. वी आर जस्ट लेफ्ट विथ वन फाइनल स्टेप. मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे जो है ये पैक कॉस्मेटिक्स का माइक्रो फिनिश. ओके, thank you the vivid scribblers. Thank you so much guys. You have to wait for this to dry and then I will show you something more. अगर आपको इसमें थोड़ा सा ग्लैम और ऐड करना है, थोड़ा सा शाइन और ऐड करना है तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बताती हूँ. हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं विजियार्ड का हाइलाइटर एक्स्ट्रा शाइन के लिए. अगर आपको जाना है तो so this is for that extra shine. If you need blush brush करके. So I'm using this विजियार्ड का हाइलाइटर in the shade Gold Sand. और फिर मैं इसे ब्लश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ. Everything should look together and seamless. आप इसे हाइलाइटर अवॉइड करके सिर्फ मैट ब्लश लगा के भी
जा सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. देखिए गाइस कितना सटल लग रहा है. दिस इज़ द लुक. अगर आपको चाहिए तो आप लिपस्टिक, ये जो हमने डबल शेड की है, ये नहीं करके हम सिंगल शेड भी कर सकते हैं. इसे मैं सिंगल शेड भी कर सकती हूँ. लेकिन अच्छा लग रहा है. ये ज़्यादा ज़्यादा दिख रहा है. साइड में उसकी ऑलरेडी डार्क है. लिप्स साइड में. आप इसे सिंगल शेड भी कर सकते हो लाइनर निकाल के. कुछ नहीं किया मैंने, वही शेड का लिपस्टिक सिर्फ हमने लाइनर के ऊपर भी कवर कर दिया है. Okay guys, this is how her look is looking. This is एक साइड कम, एक साइड ज़्यादा नहीं दिख रहा है. और नीचे भी इधर गैप है. okay guys, any questions you can ask me. Guys, any questions related this look, you can ask me right away. हाँ वही. वो लेकिन तो ऊपर का तो बराबर है. Guys, any questions? I think we are done with this look. अभी हम मॉडल को ज्वेलरी पहना के थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करेंगे. In case guys you have any requirement or inquiries for bridal makeup bookings and course, you can always WhatsApp us on the given number or you can DM us on our Instagram. All the products are available at Makeup and More official, whatever we used. So yeah, you can message us there. Okay guys, thank you. Time to take off, and I hope you guys have enjoyed this look as much as I love creating it. Okay guys, I'm ending the live.